Good afternoon, everyone. We are a part of Suryakiran Formation aerobatic team. We have come here to perform in Andaman and Nicobar Islands tomorrow and day after. Tomorrow we'll be doing the full dress rehearsal practice, and day after is the final show from 3 p.m. onwards. So last time Suryakiran aerobatic team performed in this island, it was in January 23. This time we are back to perform for Andaman, for the people of Andaman and Andaman and Nicobar, and we have with us the tricolor smoke, which has been indigenously developed. So all the maneuvers which you have seen will be with tricolor smoke here, and the show will be absolutely beautiful. So I request that everybody should join, should come and enjoy the show. If you have any questions, you can ask. Okay, sir, so the Suryakiran aerobatic team is known for its precision and synchronized formation. So could you please brief about the level of training and required coordination for this? In this team, with all the pilots who fly in this team, they are fighter pilots of Indian Air Force. After becoming a fighter pilot, they undergo a course which is the qualified flying instructor course. After having completed that course and after teaching new trainees to how to fly the aircraft, they join this team and then they are selected. First, they apply for this team and then they undergo a selection procedure. Then they become a part of this team. After that, once they have joined the team, they undergo a training of close to 10 months to a year. Then they are clear to fly in the 9 aircraft formation team and flies in two formation. That is, one is composite formation in which 9 aeroplanes fly together, and the second part of the show will be synchronous maneuvers in which aeroplanes divide themselves into different formations and then they perform aerobatic stunts. So this is a brief about the training, how pilots are selected. How can students Suryakiran pilot? Say again? How can students Okay, if you want to become a Suryakiran pilot, to bring out the first and foremost reason for making a Suryakiran team is to motivate the youth of India to join Indian Air Force. So basically, first after completing your graduation, you have to join Air Force, and from Air Force you can opt for many branches in the Air Force in which the particular branch is flying. In flying, you have to become a first fighter pilot first, and thereafter, after what Diwakar has brought out, you will be able to become Suryakiran pilot. So how much time will take to become Suryakiran pilot? Basically, there is no time as such which is specified. However, each and every pilot is a qualified flying instructor and has about minimum of 1,000 hours of flying in fighter aircraft in any of the fighter aircraft in India. So that may be the minimum qualification which is required to join Suryakiran Aircraft. So do you have any special outreach programs or any sort of things like education institute to inspire the young students to get into the Air Force or? Outreach program, as in whenever we are going to places for the display, we try to come and interact with the children and we try to motivate all of them to join the Air Force. So basically, our aim is to come to that place and thereafter interact with the people around, interact with media, so as to bring our exposure that more and more people should join the Air Force. Additionally, we have social media handles on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, which through which we connect to the youth of the nation and we tell them what it is to be in Suryakiran aerobatic team and what is currently going on in the team. So if the youth can follow those channels, then they will be able to closely follow the team and again inspire maximum number of people so that in future they choose defense as their career option and join the defense forces of the nation. क्या ट्रेनिंग की हम मतलब
हाँ, लेडीज भी सूर्य किरण पायलट बन सकती हैं। अभी एक्चुअली जो भी हमारी फर्स्ट फाइटर पायलट की जो लेडी हैं, उनकी अभी क्वालिफिकेशन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँच पाएंगी तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं सूर्य किरण टीम के लिए, और अगर वो सारा चीज़ सही रहा तो वो भी हमारे साथ टीम में होंगी। तो फ्यूचर में देर आर चांसेस कि अ लेडी विल बी अ सूर्य किरण पायलट। एंड अगर आपने ज्वाइन किया तो आप भी हमारी फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सर मेरे सवाल है सर, अंडमान निकोबार के लोग बहुत जन जो है जो इंग्लिश नहीं जानते, तो आप इसके बाद आप लोगों ने रखा ये हिंदी में भी आप लोग हमारे इससे भी यूट्यूबर चैनल है, इसके माध्यम से आप अंडमान निकोबार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में मेरा सेम मैसेज हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम अंडमान निकोबार में दोबारा परफॉर्म करने आ चुकी है। पहली बार हमने जब परफॉर्म किया था तब जनवरी 2023 में हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। अभी हमारा जो प्लान है उसमें कल और परसों 2 दिन हमारा परफॉर्मेंस रहेगा 3 PM 3 बजे के बाद। एंड आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम नंबर में आए, फॉर्मेशन सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का शो देखिए, जो कि इकलौती 9 एयरक्राफ्ट 9 जहाज की टीम है एशिया में जो ऐसे फ्लाई कर सकती है। बहुत ही लिमिटेड टीम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि ये ऐसे एरोबेटिक्स करती है। उनमें से हमारी एक इकलौती टीम है जो 9 एयरक्राफ्ट की टीम है एशिया में। उस टीम को आकर देखिए, गर्व महसूस कीजिए अपने देश के ऊपर और अपना निर्णय बनाइए कि हमें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। शो कल और परसों 3:30 बजे के बाद मरीना पार्क पे होगा। आपको 3 बजे के आसपास वहाँ आना पड़ेगा, मरीना पार्क 3 बजे। पढ़ाई सबको सेम करनी पड़ती है स्कूल में। अगर कोई पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम सब जहाँ पे आप अभी हो हम सब उसी स्टेज में थे। जितने भी लोग आप देख रहे हो हमारी टीम में, हम सब ने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। एंड स्कूल के बाद कुछ लोगों ने NDA ज्वाइन किया 12th के बाद, एंड कुछ लोग बाहर से ग्रेजुएशन करके उन्होंने एयरफोर्स का पेपर AFCAT एग्जाम क्लियर किया एंड देन दे ज्वाइंड इंडियन एयरफोर्स। फिर उनका सिलेक्शन फ्लाइंग में हुआ एंड फिर वो ट्रेनिंग करके पायलट बने। हम अपना जितना भी हम घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते थे, जितना भी होमवर्क मिलता था हम सब टाइम से करते थे, और अगर एग्जाम आते थे तो ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते थे। छुट्टी के टाइम हम फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाके खेलते भी थे, और अपने जितने भी हमें स्कूल में काम मिलते थे हम सिंसियरली करते थे। ये एक हम जिस एयरक्राफ्ट में परफॉर्म करते हैं उसका नाम है हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट, और इसमें जो गन पॉड है ये हमने खुद ही अपने 11 BRD औजार से हमने इसको मॉडिफाई कराया हुआ है, और इससे हम तिरंगा कलर निकालते हैं। ये हमारा जो जहाज़ हॉक मार्क 132 है, ये फॉर्मेशन एरोबेटिक के साथ साथ इंडिया का एडवांस जेट ट्रेनर भी है, जिसमें जो भी फाइटर पायलट इंडिया में बनते हैं हम उनको पहले एडवांस जेट ट्रेनर में 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, एंड फिर वो आगे अपने मेन फाइटर फ्लीट को में जाते हैं जहाज़ उड़ाने के लिए। तो वो सेम जहाज़ है, काफ़ी काबिल जहाज़ है और काफ़ी फास्ट भी है। कल आप देखेंगे इसका पूरा एक शो। सर, इस प्रोग्राम को बनाने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारी सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का एक ही क्लियर कट उद्देश्य है कि हम अपने यूथ को दिखा सकें कि डिफेंस फोर्सेस आपके लिए क्या क्या किस लेवल के प्रिसीजन पे जाके काम कर सकती है, उनकी ट्रेनिंग का लेवल शोकेस कर सके, ताकि यूथ मोटिवेट हो हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फ्लाइंग में वेरियस ब्रांचेस, ताकि हमारी डिफेंस फोर्सेस और सक्षम बने और केपेबल बने। No matter what, aerobatic flying comes with intense risk. So how do you people maintain the mental and physical fitness?
maintaining mental and physical fitness is by training only. So, as he has already said, around 55 to 60 sorties and around the training ends for around 6 to 10 months. So that is the duration in which we train every day, and then we develop confidence in each other. Flying 9 aircraft close to each other is very difficult. So that confidence has to be built up. So by doing this training only, we build that confidence that we are able to fly close to each other. The minimum distance between two aircraft is around 5 meters when we are flying. So that is very close, and there is no chance of anything else. You have to be prepared 100%. सर ये जो हमारा सूर्य किरण जो है सर, ये वर्ल्ड में कौन सा रैंकिंग है? We are the first one in the world. We are the best in the world. Wow. As per us. तो इस टीम में टोटल आपको टीम में कितना मैच मिला अभी है? As of now, we are having 14 pilots, out of which 9 are actively flying, and rest of them are the standard pilots. So one last thing, as आज यहाँ पर बच्चे भी हैं, so any personal story that you feel very proud कि हाँ मुझे share करना है, any personal achievement होगा या फिर the moment when आप उड़ रहे थे, that kind of inspiration, would you like to share with the kids here? एक ज़्यादा कुछ इंस्पिरेशनल मेरे पास बच्चों के लिए नहीं है. बस बेसिक एक ही चीज़ है कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे को सबको यही लगता है कि आज होमवर्क करना है, स्कूल है, एग्ज़ाम है. हम सब अपने अपने स्केड्यूल में, स्कूल के करिकुलम में बहुत बिजी होते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं होती है बच्चों के दिमाग में कि आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है. एटलीस्ट मैं तो उनमें से था जिनको क्लैरिटी नहीं थी या काफ़ी लेट आई लाइफ में. काफ़ी बच्चे होते हैं तो स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस होते हैं. तो मेरा एक ही ये मैसेज है बच्चों के लिए कि अभी ज़्यादा ना सोच के अपना मेजॉरिटी टाइम आज का काम, अभी अपनी क्लास, नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट अपना जो एक्टिविटी है उस पर लगाएं. स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ हॉबी, उस पर ज़्यादा फोकस करें. जब आप 12th करेंगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि ये करियर अपॉर्चुनिटी है. रादर दैन थिंकिंग एवरी डे अबाउट इट, focus more on your current activity, current task, which is, let us say, your exam, which might be your reading, which might be your extracurricular activity. And after, when the time comes, after 12th or after, let us say, graduation, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जाना है. अपना एम बना के रखें साइड बाय साइड, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट. कीप योर एम क्लियर, बट डोंट कीप थिंकिंग आज इसकी तैयारी या कल उसकी तैयारी. तो मेरा यही मैसेज है कि अपना प्रेजेंट में रहें, अच्छे से काम करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, खेले कूदें एंड मेक अ बैलेंस इन स्कूल. चैनल वाले लोग आए हैं जो सभी टॉप चैनल के हैं, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अंडमान निकोबार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंडमान निकोबार के लोगों को मेरा एक संदेश है कि वो पूरे भारत का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है हमारी कंट्री का, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान निकोबार हु मेक दिस प्लेस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एवरीवन हु इज कमिंग हियर. सो ये हमारा अंडमान निकोबार के लिए पूरे देश की तरफ से एक एयर शो हम उनके लिए करने जा रहे हैं. तो एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि आप लोग मैक्सिमम नंबर में आए, शो को देखें एंड अपने डिफेंस फोर्सेस पे गर्व करें कि वो किस लेवल की ट्रेनिंग, क्या कैपेबिलिटी रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं. पिछले बार आप लोग जो आए, जो कर्तव्य अपना दिखाए, जो सपनों दिखाए, और इस बार में क्या चेंजेस, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा हमारे यहाँ के कर्तव्य? डिफरेंट इसमें यह है कि पहले जब हम शो कर रहे थे तब हमारे पास ट्राई कलर नहीं था. इस बार हमारे पास ट्राई कलर भी है और कुछ एक मैनूवर्स नए ऐड भी किए हैं हमने. तो कुछ ना कुछ आपको पिछले बार से इस बार अलग देखने को मिलेगा.
In AFCAT, when you give exam of AFCAT, आपसे वो पूछेंगे कि you have to join Air Force in flying branch, the admin branch, administration, engineering branch, or various other branches, logistics branch. So once you give the AFCAT exam, you are selected in flying branch. After that, you are being selected further. After 1 year of or 1.5 years of training, you will be given fighter, transport, and helicopter. So you have to apply for flying branch when you are giving your AFCAT exam. जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे जब प्लेन उड़ा तो कुछ खराब है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको काम एंड कंपोज रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो क्या मैं सेफली उस जहाज़ को वापस लेके आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। इसके लिए हमारी रोज़ तैयारी होती है। हर दिन हम सुबह बैठते हैं ब्रीफिंग रूम में जब भी, तो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी इमरजेंसी को कि अगर ये होगा आज मेरे साथ तो ये क्या होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी काम आप करते हो तो उसके लिए इतनी तैयारी करो कि वो जब आप काम कर रहे हो उसमें कोई बाधा है तो आपके लिए ज़्यादा अड़चन ना बने और आप जल्दी से उस चीज़ को कार्य को अपने पूरा कर पाओगे। जो एयरक्राफ्ट हमने उड़ाया हमारे वही बेस्ट, हमें वही पसंद है। जैसे कि मैं Su-30 पायलट हूँ, हम ट्रेनिंग के बाद Su-30 MKI उड़ाया मैंने, और स्क्वाड्रन गौरव पटेल जैगवार पायलट हैं तो इन्होंने जैगवार एयरक्राफ्ट उड़ाया। तो हम Su-30 MKI का मैक्सिमम स्पीड 2 मार्क है, मार्क 2, स्पीड ऑफ साउंड इंटू 2। Before giving AFCAT, which graduation you should do? You have to take science as your main subject to join Air Force. आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करें या फिर आप BSc इन मैथ्स एंड फिजिक्स करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसकी पूरी जानकारी career.airforce.nic पे अवेलेबल है ऑनलाइन। आप जाएंगे ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स लिखना गूगल पे, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। AFCAT के पहले आप 12th के बाद UPSC का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो UPSC के एग्ज़ाम दीजिए और डायरेक्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाइए। उसके बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, जैसा भी आपको जिसमें जाने का मन हो।